Welcome back, boys. In this module, now today we are going to start the Kirchhoff's law and its application. Now, uh, before coming to the Kirchhoff's law, we should know that why these laws are used. In an electrical network, when it becomes difficult to find and judge whether all the resistances are in series combination or in parallel combination, then we apply Kirchhoff's rule to find out current in different branches of the electrical network. And while using Kirchhoff's laws, there are two Kirchhoff's laws, and Kirchhoff's first law is based on law of conservation of charge, and Kirchhoff's second law is based on the law of conservation of energy. Now we will discuss both the laws in detail and its application to find out the current in the given electrical network. And at the end of this module, I will give some assignment in the form of questions based on Kirchhoff's law. And please do those questions. But before attempting to solve those questions, you must learn the sign convention based on Kirchhoff's law. As I have provided to you the details of the sign convention and rule, and I think you must have done it. So, you should revise the laws of sign convention of using Kirchhoff's rules, and after that you should try to solve the numericals. And one more suggestion, that try to learn the sign convention from one book only and follow that, whether you are finding questions from any book, but try to follow one sign convention. ऐसा नहीं कि आप अलग अलग बुक से याद करें, क्योंकि थोड़ा सा उसमें कन्वेंशन है, लोगों ने बुक्स ने अपने अपने हिसाब से लिखा है, तो आप किसी एक बुक को फॉलो करिए, कोई एक साइन कन्वेंशन फॉलो करिए, दैट इज सफिशिएंट टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. So, here we are going to take Kirchhoff's law. Now, Kirchhoff's first law. Kirchhoff's first law states that algebraic sum of currents at any junction is equal to 0. Or we can say sum of the currents reaching to the junction is equal to sum of currents leaving the junction. If you consider current coming to the junction as positive, then current leaving the junction should be taken as negative. Now, Kirchhoff's first rule, a statement you have learned, summation I is equal to 0. That is, algebraic sum of current in a closed mesh, at a junction, it's 0. Junction क्या होता है? जंक्शन वो पॉइंट होता है जहां पे कई वायर्स आके जुड़ते हैं और कई निकलते हैं. दैट पॉइंट इन सर्किट इज कॉल्ड जंक्शन. अभी हम बनाते हैं जंक्शन. नाउ वी कैन सी दैट दिस पॉइंट O is a junction and there are four branches. This is I1, this is I2, this is junction O, this is I3, and this is I4. Now, if we consider that I1 and I2 to be positive, I1, I2 को positive लिया गया, any current coming to the junction can be taken to be positive, and current leaving the junction should be taken to be negative. Now, we can write by using this concept, that is I1 plus I2 minus I3 minus I4 is equal to 0, or we can say I1 plus I2 is equal to I3 plus I4. That is, currents reaching to the junction is equal to current leaving the junction. वो उसी से आया, समेशन I is equal to 0. आने वाली करंट्स को हमने पॉजिटिव लिया और जाने वाली करंट्स को हमने नेगेटिव लिया. हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज ए कन्वेंशन. ठीक है. So this is Kirchhoff's first law
and it is based on the law of conservation of charge. जब हम करंट की बात कहते हैं कि जितनी करंट आ रही है उतनी जा रही है, तो डेफिनेटली करंट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ चार्ज. जितना चार्ज आ रहा है उतना चार्ज फ्लो हो रहा है. ठीक, मान लीजिए 10 कूलम्स चार्ज in sum of two currents I1 and I2 is coming toward the junction, then suddenly 10 coulomb charge will have to leave the junction, क्योंकि बीच में कहीं उस चार्ज का कुछ होगा नहीं. So this is Kirchhoff's first law. Now come to second law. और एक important चीज, this law is based on the law of conservation of charge. चार्ज क्योंकि करंट कंजर्व है, आने वाली करंट जाने वाली करंट के इक्वल है. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज कमिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू चार्ज लीविंग द जंक्शन. ओके, नाउ कम टू सेकेंड लॉ. Second law is equal to summation V is equal to 0. उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसे, that is algebraic sum of potentials in a closed mesh or closed loop. mesh का मतलब क्या होता है? loop, MESH. it is a closed conducting path. जो loop हम लेते हैं that is closed conducting path, and algebraic sum of potentials is equal to 0, and this is based on the law of conservation of energy. इसको हम फर्दर रीडिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ आई आर, यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ आई आर, समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल्स. यानी summation of IR is equal to summation of EMF of the cells, and we can write this like this, that is summation E is equal to summation IR. IR क्या होगा? That is product of current and resistance. It is again potential difference. The summation of EMF of the cells, that is cells which are included in the circuit. Okay. Now अब इन दोनों लॉ को लगाने के लिए जो साइन कन्वेंशन यूज होता है वो इंपॉर्टेंट है. और साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद ये सिंपली 8th क्लास का साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन हो जाता है. बट व्हाइल अप्लाइंग द साइन कन्वेंशन यू मस्ट बी वेरी कॉशियस. आपको बहुत कॉशियस रहना होता है पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में, क्योंकि एक गलत साइन आपका सारा आंसर बिगाड़ देगा. तो आता सबको है साइन कन्वेंशन, आता सबको है साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना, लेकिन एक एक्यूरेसी एक ऐसा फैक्टर है जिससे एटलीस्ट 60% लोगों का आंसर फर्स्ट अटेम्प्ट में गलत हो जाता है. सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी कॉशियस व्हाइल अप्लाइंग द साइन कन्वेंशन. अब हम इसके बाद आते हैं साइन कन्वेंशन पे. इन समेशन ई, वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, समेशन ई दैट इज समेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल्स. अब ईएमएफ पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे, दैट वी विल लर्न इन द साइन कन्वेंशन. प्रोडक्ट ऑफ आई आर हम पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव लेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द साइन कन्वेंशन. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू साइन कन्वेंशन. तो साइन कन्वेंशन को आप बहुत ही क्लियरली लर्न करिएगा और सिर्फ एक बुक से लर्न करिएगा. आप नूतन से कर रहे हैं, एसएल से कर रहे हैं, एनसीईआरटी से कर रहे हैं, एससी वर्मा से कर रहे हैं, किसी से कर रहे हैं, या अपना कोई अलग साइन कन्वेंशन बना ले रहे हैं, वो भी चलेगा, लेकिन जो करिए वही करिएगा. नाउ साइन कन्वेंशन, इसको अलग अलग पॉइंट्स में हम लिख देते हैं. दैट इज फर्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ IR is positive when the direction of DIRN of current is in the
डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल मतलब कि आई आर का प्रोडक्ट हम पॉजिटिव लेंगे जब डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल एक होगा। हम डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल भी मार्क करेंगे सर्किट में while applying the Kirchhoff's law, but before that we must know and learn this point. तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, the product of IR is positive when the direction of current is in the direction of traversal. Now come to second point. अब second point मैं इसी में चेंज कर देना, you can write it, then I can change, यहाँ नेगेटिव करना होगा, is in the opposite, negative is in the opposite direction of traversal. यानी अब डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल अगर ये है, टी से मार्क कर देते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट ये है तो पॉजिटिव होगा आई आर, ठीक। सेकंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल ये है, डायरेक्शन ऑफ करंट ये है तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ये नेगेटिव होगा, दैट इज आई आर इज नेगेटिव, ठीक है। इससे आप समझ जाइए ट्रेवर्सल क्या होगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। ट्रेवर्सल आपको समझ में आएगा इन द क्लोज लूप। सो दीज आर टू पॉइंट्स बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ आई आर। आई आर का प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर ब्रांच। Okay, so these are first 2 points. Let this point is 2. तो फर्स्ट पहले लिख सका, अब ये सेकंड हो गया। Now you can write second point by pausing the video. Now come to third point. Third point is related with the EMF of the cell, and it's very simple. Now third point, if direction of current in cell is from negative terminal to positive terminal inside the cell, then EMF is taken as positive. If the direction of current in the cell is from negative terminal to positive terminal, मतलब क्या हुआ, ऐसे अगर करंट ऐसे जा रही है तब हम जो लेंगे EMF E पॉजिटिव E, ये नेगेटिव टर्मिनल हुआ या पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे जो इसी से रिलेटेड है। फोर्थ पॉइंट को हम देखते हैं। नाउ आई थिंक यू कैन लर्न इट। पॉजिटिव यहां कर देते हैं, सॉरी, the direction of current in the cell is from negative terminal to positive terminal inside the cell, the EMF is taken as positive, correct. Now if the direction of current in a cell is from positive terminal to negative terminal, this point has become now fourth, negative terminal inside the cell, then EMF of the cell is taken as negative. अब इसको भी बना के दिखा देते हैं आपको। Now this is positive terminal, this is negative terminal, current is moving in this, and then in this condition the EMF off is, that is negative EMF. तो ये चार बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करना चाहिए साइन कन्वेंशन के लिए। ओके, नाउ कम टू एप्लीकेशन ऑफ साइन कन्वेंशन। वी विल टेक वन क्वेश्चन एंड वी विल अप्लाई in the simpler manner in terms of I1, I2, R1, R2. I have given one question, that is I have given
one example in that supplement which I have uploaded to you for learning, and that similar I will take here also, because you can easily understand what has been given in that. Okay, so let me draw that diagram and then I will write. Now I have drawn the diagram and I have not marked the current, क्योंकि उसमें भी कुछ चीज़ें बतानी है आपको. We have taken a single diagram and it has been provided to you. Now see here what happens exactly. ये दो सेल्स लगी हैं. डेफिनेटली आप पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लेंगे. सपोज करंट I1 यहाँ है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें करंट मार्क होती है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें आपको करंट मार्क करनी होती है. तो हमने ये मान लिया कि हमको करंट मार्क करनी है. यहाँ से करंट I1 निकली, यहाँ से करंट I2 निकली. अब ये दोनों जंक्शन E पर जा रहे हैं जैसे ही है, तो I1 करंट यहाँ से आ रही है, I2 करंट यहाँ से आ रही है. अब यहाँ इस जंक्शन पर हम किरचॉफ्स लॉ के यानी जंक्शन रूल लगाएंगे. फर्स्ट रूल, दैट इज समेशन I इज इक्वल टू 0. अब समेशन I इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर करंट कितनी हो जाएगी? हम ये मान लेते हैं करंट I3 हो जाएगी. और I3 किसके इक्वल होगी? I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2. तो हम इस ब्रांच में चाहे करंट I3 माने या हम माने करंट I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3. अब ये जंक्शन है, मैं सारी चीजें, ये एक क्लोज मेश है, क्लोज लूप है. इसे हम एक क्लोज लूप ले सकते हैं और इस टोटल को भी एक क्लोज ले सकते हैं. जब हम टोटल को क्लोज लूप लेंगे तो हम इस वाली ब्रांच को डिस्कार्ड कर देंगे. यानी हम एक ऐसा लूप ले सकते हैं दैट इज A B C D E F, या हम इसका नाम ऐसे दे सकते हैं A C D F A. हमेशा क्लोज लूप क्या होगा? जहां से स्टार्ट होगा वहीं पे एंड होगा. ठीक. अब आता है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल. ट्रेवर्सल का मतलब यह होता है कि आप किसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और फिर वापस उसी पॉइंट तक आएंगे. किसी पॉइंट पे स्टार्ट करेंगे फिर वापस उसी पॉइंट तक आएंगे. अब मान लीजिए हमने ये ले लिया डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल, ये ले लिया यहां और ये ले लिया यहां, यानी हम ऐसे चल रहे हैं. तो मान लीजिए हम स्टार्ट कर रहे हैं कहां से? A से, और वापस इस लूप में आएंगे A पॉइंट पे. इसको 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, या हम यहां ऐसे लिखेंगे इन क्लोज्ड लूप दिस इज A B E F A, A B E F A. अब क्या होगा? A B E F A. अब यहां देखिए, अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, सॉरी दिस इज A पॉइंट, यहां से स्टार्ट किए और इधर को जाना, A से स्टार्ट किया फिर हम A तक आए, तो यहां पहले हमको सेल मिलती है और सेल में जो हमारी एंट्री हो रही है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. सो वी विल टेक EMF ऑफ दिस सेल पॉजिटिव. तो यहां हमने क्या लिख दिया? E2. ठीक. अब IR में यहां करंट I2 है, ठीक है, और दूसरी सेल हमने देखा हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, ट्रेवर्सल लेते हैं. सो ट्रेवर्सल इज दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. सो दिस बिकम्स -E1. दोनों सेल की बात हो गई. अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ IR में. यहां पर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल और डायरेक्शन ऑफ करंट एक है. वी आर मूविंग लाइक दिस, देन इट इज इक्वल टू I2 R1. अब देखिए यहां आते हैं तो यहां पर क्या हो गया? I1 करंट हमने यहां लिया है. अब यहां पर जो वैल्यू आई, हमारा ट्रेवर्सल का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है. देन वी कैन से दिस दैट इज
I1 R2। अब ये एक इक्वेशन हो गई, ठीक। अब हम सेकेंड लूप में आते हैं, दैट इज इन लूप 2, दैट इज B, लूप 2 B E D C B। यहां से हम चल के यहां आते हैं, यहां भी ट्रेवर्सल का डायरेक्शन है, तो पहले इसमें सेल एक ही लगी है और यहां हम नेगेटिव से पॉजिटिव एंटर कर रहे हैं, देन दिस बिकम्स E1। आगे यहां आए I1 प्लस I1 और R2 एक ही डायरेक्शन में है, दैट इज I1 R2 पॉजिटिव लेंगे। अगेन यहां पर I3 हो गई, या हम ये कहें यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट यही है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल यही है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज I1 प्लस I2 and this R3. So this is equation 1 and this is equation 2. So now there are two equations and two variables, that is I1 and I2. अब देखिए कि जो हमने लिया है और जो हमने एग्जैक्टली आपको सप्लाई किया है, आपको मैंने अपलोड किया था, उसमें इस E1 और E2 की पोजीशन चेंज है। R2 अगर E1 E2 की पोजीशन चेंज है, I1 I2 की पोजीशन सेम है, तो मैंने उस टर्म में लिखा कि आपका एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, दूसरा मैंने चेंज करके लिखा, और उन दोनों में जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि आपको E1 E2 की वैल्यू पता होगी, R1 R2 की वैल्यू पता होगी, यू कैन, तो I1 I2 में एक इक्वेशन आ गया साइमल्टेनियस। यहां आए, यहां दिस इज सॉरी, दिस इज I R2, दिस इज I1 R2, दिस इज I1 R2, ये वाला रेजिस्टेंस है, तो ये वाली करंट हमने लिया, सॉरी। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हो गए, दो वेरिएबल्स हैं और हम निकाल सकते हैं, ठीक। I1 I2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर इसमें से I1 I2 की वैल्यू कोई पॉजिटिव आ जाती है, कोई नेगेटिव आती है, तो नेगेटिव, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल I1 की वैल्यू नेगेटिव आ गई। अब I1 की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब यह हुआ कि करंट यहां से इधर को नहीं जा रही थी। एग्जैक्ट कंडीशन इज दैट नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस, अपोजिट टू द असाइंड डायरेक्शन, अपोजिट टू द असाइंड डायरेक्शन। अब आते हैं, कुछ लोग को क्वेश्चन रहता है कि भाई सर हम डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल जरूरी है दोनों लूप में एक ही डायरेक्शन माने? नहीं, कतई जरूरी नहीं। आप इसको इधर ले लीजिए, इसको इधर ले लीजिए, इस डायरेक्शन ले लीजिए, फर्क क्या पड़ेगा? अगर आपने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया तो इक्वेशन 2 में जितनी भी क्वांटिटीज हैं उन सब का साइन चेंज हो जाएगा, और अगर सबका साइन चेंज हो गया किसी इक्वेशन में, that is sign of all the terms on the left hand side and on the right hand side is changed, then certainly it is not going to affect the equation. हम दोनों तरफ से एक माइनस साइन लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल जरूरी नहीं कि दोनों लूप या 3 लूप बन रहे हैं, 4 लूप बन रहे हैं तो सब में एक हो, आप किसी तरह से मान सकते हैं, ठीक है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, यहां हमने E2 को पॉजिटिव लिया because the direction of traversal was this, and हमने E1 को negative लिया क्योंकि direction of traversal was from positive terminal to negative terminal. Clear? Now in this case, the two equations have been written, and by these two equations, you can apply the Kirchhoff's rule to find out the करंट इन द डिफरेंट सर्किट्स। जो पॉसिबिलिटी होती है इस रूल को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। मैंने वहां सेकंड रूल जो लिखाया है, जो थर्ड और फोर्थ लिखाया है, वहां डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने मार्क करा दिया है, बट दैट एग्जैक्टली डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल इन द सेल, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट में, थर्ड बाय मिस्टेक में बोल गया, फोर्थ पॉइंट
क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल इन प्लेस ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ठीक, दैट इज डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल। अब डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल चेंज करने से कोई चेंज नहीं, जैसे मान लीजिए इसी इक्वेशन में आपने ये कर दिया होता, इस इक्वेशन में ये कर दिया होता, तो क्या होता, अब E1 पॉजिटिव हो जाती, E2 नेगेटिव हो जाती, ये डायरेक्शन ऑफ करंट में हो जाता, तो ये अगर पॉजिटिव था, सॉरी ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो जाता, और ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो जाता। तो क्या होता है, एक इक्वेशन में सारे का साइन चेंज हो जाता, और जब सारे साइन एक साथ चेंज हो जाते हैं, देन we say that there is no net effect on the current on the parameters of the circuit। ठीक, तो जंक्शन रूल हमने अप्लाई किया यहां। आप इसी को, जैसे इसी क्वेश्चन में आप ये मान सकते थे कि यहां से करंट I1 निकली, यहां करंट इधर को चली गई, और रिमेनिंग करंट इधर को चली गई। आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि it is not necessary that direction of current will be marked in a circuit। जैसे अगर आपको उस समय ऐसा करना होता, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ये इतना ही बना रहा हूँ, बस यहाँ से करंट I1 आई, यहाँ को करंट I2 गई, और यहाँ को करंट I1 माइनस I2। तो अगर I1 माइनस I2 और I2 को ऐड कर देंगे आप, ठीक है, तो कितनी आएगी, I1 करंट थी, I1 बची, I2 यहां से चली गई, I1 माइनस I2 इधर से जा रही। तो आप ये वाला भी जंक्शन रूल लगा सकते हैं, इसमें भी आपको क्या, दो वेरिएबल्स हैं। अब ये है, डेफिनेटली अगर आप न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो हो सकता है I2 की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, एंड इट विल इंडिकेट दैट नाउ I2 इज करंट इज इन दिस डायरेक्शन, इट इज नॉट इन दिस डायरेक्शन। क्लियर? So these are few tips to solve the questions based on Kirchhoff's law. Now it is essential for you. Now tomorrow I am not going to take any further topic. Next topic is meter bridge and Wheatstone bridge. I will take that topic in next lecture. But before that, you please solve at least 10 questions based on Kirchhoff's rule. That will increase your proficiency of solving the questions related to Kirchhoff's rule। और कोई जरूरी नहीं है कि जो भी आप क्वेश्चन Kirchhoff's rule लगा रहे हैं उसका आंसर सही निकल रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है और उसी में लोग काफी गलतियां करते हैं। ठीक है, सो नाउ assignment for this lecture is, that is I will provide at least 10 questions and I will provide that is answers also, 10 questions based on Kirchhoff's rule, and you please solve those questions by yourself and try until you get correct answer। क्योंकि अगर हम आंसर्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, then I think you cannot judge that whether you have solved correctly or incorrectly। So that's all for this lecture. Stay tuned. Goodbye.